آج کل ابراہم اکارڈ کا بہت شور ہے، ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ We talked about the Abraham Accords now that All of you heard about the Abraham Accords. You can come into the Abraham Peace Accords. Abraham Accords and Abraham Accords are آخر کیا ہے یہ ابراہم اکارڈ اور اسے ابراہم اکارڈ کیوں کہا جا رہا ہے؟ امریکہ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب پر اس کا حصہ بننے کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اس کا حصہ بنے گا؟ ابراہم اکارڈ کے پہلے فیز میں جن عرب ممالک نے اس کو قبول کیا انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان میں اچانک ابراہم اکارڈ کا شور کیوں سنائی دے رہا ہے؟ کیا پاکستان بھی کسی سطح پر اس کا حصہ بننے کا تو نہیں سوچ رہا؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں ایک اصول چلا آ رہا تھا کہ عرب ممالک اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ ان کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن 2020 میں یہ اصول اچانک ٹوٹ گیا۔ ابراہم اکارڈ جنہیں امریکہ کی ثالثی میں طے کیا گیا، اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ یہ وہ قدم تھا جس کی توقع بہت کم لوگوں کو تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ عرب ممالک اس کا حصہ بن جائیں گے جنہوں نے آج تک فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف ایک بہت ہی اصولی سٹینڈ لے رکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون کون سے ممالک ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر دسمبر 2020 میں مراکش اور جنوری 2021 میں سوڈان بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی، اور دنیا کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اتنا اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ابراہم اکارڈ یا یہ معاہدے صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھے جس کے اثرات آج بھی مشرق وسطی اور پوری دنیا پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنا اچانک کیسے اور کیوں ہوا؟ اس کہانی کے پیچھے آخر وہ کون سے محرکات تھے جنہوں نے ان ممالک کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا؟ یاد رکھیے کہ ہر بڑی اور غیر معمولی تبدیلی کے پیچھے کچھ گہری وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ ابراہم اکارڈ بھی محض امن کی خواہش کا نتیجہ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس معاہدے کے پیچھے کچھ بہت ٹھوس اور دفاعی محرکات کار فرما تھے، اور ان محرکات میں سب سے بڑا محرک ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ مشرق وسطی میں ایران کا بڑھتا ہوا علاقائی اثر و رسوخ اور اس کا جوہری پروگرام، اور خطے میں اس کے حمایت یافتہ گروہوں یا اس کی پراکسیز کی سرگرمیاں اسرائیل اور کئی عرب ریاستوں کے لیے ایک مشترکہ اور سنگین خطرہ بن چکی تھی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے ممالک کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ایسے میں انہیں ایک مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی، ایک ایسے اتحادی کی جو ایران کا مقابلہ کرنے میں ان کا ساتھ دے سکے، اور اسرائیل اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ایک فطری انتخاب نظر آیا۔ یہ معاہدے دراصل ایران کے خلاف ایک غیر اعلانیہ اتحاد کی بنیاد تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان معاہدوں کو ابراہم اکارڈ کا نام کیوں دیا گیا۔ ابراہم، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تینوں ریلیجن، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا پھر یہودی، یہ دین ابراہیمی کو اپنا دین مانتے ہیں، اور یہی ان کی مشترکہ بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اس معاہدے کو یا ان معاہدوں کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا گیا۔ گویا ایک طرح سے یہ ایک چال بھی ہے کہ ابراہم نام کی بنیاد پہ ہم مسلمانوں کو زیادہ جلدی قائل کر لیں گے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں یا اسرائیلی ریاست کے مشترکہ مفادات کا حصہ بنے، مشترکہ مفادات کے لیے۔ گویا آپ اس کو
ایک طرح کی चाल भी कह सकते हैं कि वो अब्राहम नाम दिखाकर मुसलमानों के अंदर एक नरमी पैदा करना चाहते थे कि वो किसी न किसी तरह इसराइल को या यहूदी रियासत को तस्लीम करने पर आमादा हो जाएं या उन्हें आमादा होने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। इन मुआहिदों का हिस्सा बनने के नतीजे में इन ममालिक को, इन अरब ममालिक को आखिर क्या मिला? जाहिर है कि इन ममालिक ने यह भी सोचा कि अगर वो इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के दरवाजे खोलेंगे तो उनकी माइशतें बहुत तेजी से तरक्की कर सकती हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक अपनी माइशत को तेल पर इन्हिसार से निकालकर मुतनव्वे बनाना चाहते थे और इसराइल की जदीद टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत पुरकशिश थी। बराह रास्त परवाजों और सयाहत के जरिए लोगों के दरमियान रवाबित बढ़ाने और सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए बहुत सारे इम्कानात भी उनकी नजर में थे। ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी और सेहत के शोबों में ताउन के भी वसी इम्कानात मौजूद थे। ये माशी और समाजी फवायद एक बहुत बड़ा मुहर्रिक थे कि ये ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। इसराइल को तस्लीम करवाने के पीछे या अब्राहम अकॉर्ड के पस मंजर में अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है और यकीनन इसराइल के सारे ही मामलात में अमेरिका का किरदार तो यकीनन होता है। अमेरिका ने इन मुआहदों को अमली शक्ल देने में उस वक्त भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सदर थे। ट्रंप इंतजामिया ने इन ममालिक को राजी करने के लिए कुछ अहम मराआत और सौदे किए। सबसे पहले बात करते हैं मराकेश के साथ सौदे की। अमेरिका ने मराकेश की मगरबी सहारा पर खुद मुख्तारी को तस्लीम किया, जो मराकेश के लिए एक बहुत बड़ा देरीना और अहम मसला था। जैसे पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर बहुत अहम है, मराकेश के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी जो मराकेश ने इसराइल को तस्लीम करने के बदले हासिल की। सूडान की बात करते हैं। सूडान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल दिया गया और उसे बड़ी माली इमदाद का वादा भी किया गया। सूडान की मईशत तबाहाल थी, दहशत गर्दी के उस पे बहुत सारे चार्जेस थे और दुनिया भर में सूडान का इमेज बुरी तरह मुतासिर था और उस वक्त उसे इसी तरह के किसी रिलीफ की जरूरत थी कि जो रिलीफ आलमी दुनिया में उसकी साख को भी बहाल करे और उसके माली मामलात को और कर्जों में डूबे सूडान को भी सांस लेने का मौका फराहम करे और अमेरिका ने यही सब कुछ किया। अमेरिका का मकसद मशरिक वुस्ता में अपने इत्तेहादियों को मजबूत करना और ईरान के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाना था। इसी दौरान कुछ अरब रियासतों ने यह महसूस किया कि फलस्तीनी मसला हल होने का इंतजार करना उनके अपने कौमी मफादात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी दौरान इन अरब रियासतों ने यह महसूस किया कि फलस्तीनी मसले के हल होने का इंतजार करना उनके अपने कौमी मफाद के लिए शदीद नुकसान का बायस हो सकता है, ये इनको लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी तवज्जो इक्तिसादी तरक्की पर मरकूज की और फलस्तीनी कॉज को एक तरफ रखकर इसराइल के साथ बराह रास्त ताल्लुकात कायम करने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जो दहाइयों पुरानी रिवायत को तोड़ रहा था। जब अरब ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने तो इससे सिर्फ उन ममालिक ही को फायदा नहीं हुआ बल्कि खुद इसराइल को भी इससे बहुत बड़ा सफारती फायदा हासिल हुआ। इसराइल को इस खित्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो सफारती तन्हाई का शिकार है और इन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करके उसकी सफारती तन्हाई का एक तरह से खात्मा करने में कलीदी किरदार अदा किया। कम से कम अरब दुनिया में तो इसराइल अब सफारती तौर पर तन्हा नहीं था। इसराइल को नई तिजारती मंडियों, टेक्नोलॉजी के शोबे में शिराकतदारियां और सिक्योरिटी के नए इत्तेहादी मिले। बराह रास्त परवाजें शुरू हुई, सफारत खाने खुले और सबसे अहम बात यह कि इन मुआहदों ने फलस्तीनी वीटो के तसव्वुर को भी तोड़ कर रख दिया। क्या मतलब फलस्तीनी वीटो का तसव्वुर? यानी अब अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने के लिए फलस्तीन के मसले को हल करने का या हल होने का कोई इंतजार नहीं था। इन मुआहदों के बाद इसराइल और इन जिक्र करदा ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदों में बहुत तेजी आई। 2020 के मुकाबले में 2021 के पहले 7 महीनों में, हाँ जी सिर्फ पहले 7 महीनों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तिजारत का हजम 234% बढ़ गया। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो जो तिजारत 50.8 मिलियन डॉलर थी वो बढ़कर 613.9 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी सिर्फ पहले
7 महीनों में। इसी तरह 2023 तक अब्राहम अकॉर्ड के तमाम रुकन ममालिक के दरमियान मजमूई तिजारत का हजम $4 बिलियन तक पहुंच चुका था। इन मुआहदों ने बराह रास्त परवाजों की राह हमवार की, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, जिससे लोगों का एक दूसरे के मुल्कों में आना जाना आसान हो गया। अगस्त 2021 तक तकरीबन 2.5 लाख इसराइली मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर चुके थे। ये आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि इन मुआहदों ने न सिर्फ हुकूमती सतह पर रवाबित को फरोग दिया, बल्कि अवामी सतह पर भी एक दूसरे के साथ मिलने जुलने को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया। अब तक तो हमने ये जान लिया कि इन मुआहदों से यानी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने से अरब ममालिक को क्या मिला और इसराइल को क्या मिला। अब जरा जान लेते हैं कि इन सारे मुआहदों के पीछे जो साहिब थे यानी कि अमेरिका, उनको क्या मिला। उनको मिली इस खित्ते की चौधराहट, और उस चौधराहट का नतीजा आपने ईरान इसराइल जंग में बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। इसी तरह अमेरिका ने खुद को मशरिक वस्ता में अमन कायम करने वाले एक ताकतवर सालिस के तौर पर पेश किया। वैसे भी सदर डोनाल्ड ट्रंप सालिसी के बहुत ही शौकीन है, और सिर्फ अपने पहले दौर में नहीं बल्कि अब अपने दूसरे मुद्दत सदारत में भी उनकी सालिसी की ये ख्वाहिशें और उनकी सालिसी की ये कोशिशें और उनकी सालिसी का ये शौक किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन उनकी सालिसी नतीजतन क्या गुल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अमेरिका ने अपने इलाकाई इत्तेहादियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया और ईरान के खिलाफ अपने असर और रसूख को इस खित्ते में मजीद मजबूत कर लिया। लेकिन हर कहानी के कुछ तारीख पहलू भी होते हैं, और अब्राहम अकॉर्ड भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। इन मुआहदों से सबसे पहले जो कौम मुतासिर हुई वो थी फलस्तीनी कौम। फलस्तीनियों ने इन मुआहदों को अपनी पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया, और फलस्तीनी अपनी ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानिब है। उनके अरब भाइयों ने उनके मसले को यकसर नजरअंदाज करके इसराइल के साथ अचानक ताल्लुकात कायम कर लिए। ये बात आखिर उनके लिए कैसे काबिल बर्दाश्त हो सकती थी, और इसके नतीजे में 2 रियासती हल जो कई दहाइयों से मशरिक वस्ता में अमन की बुनियाद समझा जाता था, मजीद पीछे चला गया। इसराइली बस्तियों की तोसी में मजीद इजाफा होता चला गया, जिससे फलस्तीनियों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि फिर हमने गज्जा होते हुए देखा। अक्टूबर 2023 यानी 7 अक्टूबर 2023 को जब गज्जा का ये सानहा शुरू हुआ, इसको भी बाज अहम तरीन और मुस्तनद तज्जियाकार इन्हीं मुआहदों से पैदा होने वाली मायूसी, बेचैनी और गुस्से से जोड़ रहे हैं। जब फलस्तीनी अवाम ने ये समझा कि वो बिल्कुल अकेले हैं और उनके जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अब इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उनके पास शायद सिवाय इसके कोई इशारा नहीं था कि वो अपनी खुद मुख्तारी की जंग के लिए खुद मैदान में उतर आए। अब इस वीडियो का सबसे अहम पॉइंट कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। जहां अब्राहम अकॉर्ड पर दुनिया भर से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आए हैं, हर कोई अपनी कहानी सुना रहा है। पाकिस्तान ने इस सब सूरत हाल पर बहुत ही उसूली और तारीखी मौक़िफ़ को बरकरार रखा, जो आज 9 और 10 जुलाई 2025 जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया है। हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि हम इसराइल को उस वक़्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक 1967 की सरहदों पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुदस होगा। ये हमारी 7 दहाइयों पुरानी पॉलिसी है, जिससे हम कभी भी हटने को तैयार नहीं हो सकते और किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ दबाव के इशारे जरूर मिले हैं, और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी उन इशारों पर नाचने वाले कुछ सहाफ़ी भी इस पर बहुत बात करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क़यादत ने इस तरह के किसी भी इम्कान को यकसर मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, और ऐसा करना फ़लस्तीनी मसले पर हमारे देरीना मौक़िफ़ को तर्क कर देने के मुतरादिफ होगा। बल्कि अगर आवाम की तर्जुमानी करते हुए कहूँ कि उस मौक़िफ़ के साथ गद्दारी के मुतरादिफ होगा, और सिर्फ उस मौक़िफ़ के साथ नहीं बल्कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहिमहुल्लाह की रूह के साथ गद्दारी के मुतरादिफ होगा। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा है कि अगर दबाव आया, यानी कि इसका मतलब यह है कि दबाव तो आ रहा है,
तो उन्होंने ये कहा कि अगर दबाव आया तो पाकिस्तान अपने कौमी मफादात को तरजीह देगा और किसी ऐसी अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगा जो हमें नुकसान पहुंचाए। और ये पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे खलीजी ममालिक के साथ भी बड़े गहरे ताल्लुकात में, तो एक इम्कान ये भी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उस तरफ से कोई प्रेशर पाकिस्तान पे डलवा सकते हैं। पाकिस्तान उन ताल्लुकात को बरकरार भी रखना चाहता है और फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत से भी पीछे नहीं हटना चाहता और इसराइल को तस्लीम करने का भी नहीं सोचना चाहता। इसलिए पाकिस्तान को अपने माशी मफादात और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ अपने देरीना ताल्लुकात के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी क़यादत ये भी जानती है कि उन्होंने किसी भी दबाव के तहत आकर इन मुआहदों का हिस्सा बनने का सोचा भी तो अवाम पाकिस्तान उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सालमियत के लिए भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। पाकिस्तान के नुक्ते नजर से अगर देखें तो अब्राहम अकॉर्ड और मशरिक वस्ता में उभरते हुए नए इत्तेहादी जिसमें भारत और इसराइल शामिल हैं, पाकिस्तान की तवानाई और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और ये एक ऐसा पहलू है जिस पर पाकिस्तान बहुत गहरी नजर रखे हुए है और बहुत ही गहराई से सोच रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, हम ना तो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे और ना ही अपने कौमी मफादात पर कोई समझौता करेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस बात में पिन्हा है कि हम किस तरह हिकमत अमली से इन चैलेंजेस को मौक़े में बदलते हैं और अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब्राहम अकॉर्ड मशरिक वस्ता में एक नई हकीकत बनकर सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपना रास्ता साफ रखा है। हमारा मौक़िफ़ मजबूत है और हम पुरुम्मीद हैं कि फ़लस्तीनियों को जल्द अज जल्द उनके जायज़ हुकूक जरूर मिलेंगे और पाकिस्तान हर तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों को हर महाज पर सपोर्ट करता रहेगा। और ये हिमायत दरअसल सिर्फ फ़लस्तीन के साथ नहीं है, बल्कि ये हिमायत खित्ते में हकीकी और देरपा अमन कायम करने की एक बहुत ही शानदार और जानदार कोशिश है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी इस कोशिश में कामयाब रखे और दुश्मन जो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से किसी भी उन्वान से बुरा सोचता है या बुरे ख्यालात रखता है या बुरे अज़ाइम रखता है, अल्लाह उनके अज़ाइम को उन्हीं पर पलट दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।